Good morning, students of class 11th. Welcome to your online classes of English. Today, we will be starting with the first chapter, the first book, what you are having, that is Hornbill. Under Hornbill, today we'll be starting with the first chapter. The name of the chapter is what? The Portrait of a Lady. Now, the portrait here means what? That means here the portrait means we are not talking about the painting. Now, here we are talking about the author Khushwant Singh. The author Khushwant Singh, he is drawing the pen picture of his grandmother. That means he is telling the story about his grandmother. That means what life he has spent during his childhood and during his young age along with his grandmother. Now, basically, the two characters are really very important in this chapter. That means, first, the character of the grandmother, what we are talking about, and the second character of the narrator, who is the author of the story, Khushwant Singh. Okay, the second character is of Khushwant Singh. Now, what are the main objectives and outcome of the lesson? The main objective of the lesson is that means how you are loved by your grandparents. We often find in our houses, also in our homes, also our grandparents love the grandchildren very much. In this way, also, Khushwant Singh was loved by her grandmother. During his childhood, Khushwant Singh was taken care by his grandmother. His grandmother loved him very much. Okay, that means if they are showing affection, that means you should also show affection towards them. That means you are respecting the most to them, you are also loving them in your houses. Okay, that means grandparents are very lovable. Okay, so this is the main objective. If they are paying respect to you, you should also pay respect to them. If they are showing love to you, you should also show love to them, because they are very lovable. They really do take care of you all in your homes also, just like Khushwant Singh. Okay, and what are the main outcome of the lesson? The main outcome of the lesson is that you should always respect elderly persons in your home. That means you should have good culture and tradition in your home. You should always pay respect to your grandparents and parents. You should talking to them with respect. Okay, always love them and care about them. Okay, that means never leave them alone in their life. Try to be the part of their life. Okay, this is the main outcome of the lesson, you could say. Now, see, we'll talk about the chapter now. First of all, short introduction I will be giving you about the chapter. Okay, the portrait of a lady. The portrait means what? The Khushwant Singh, the author, is drawing a pen picture of his grandmother. He is telling the story about his grandmother. Now, see, in the portrait of a lady, Khushwant Singh draws a live pen portrait of his grandmother. That means Khushwant Singh is telling the story about his grandmother. He had intimate relations with her since his childhood. That means he was having a very close relation with his grandmother during his childhood. However, a turning point came to their relationship
when the narrator parents sent for them in the city. When the turning point came in their life, the turning point came in their life when the author parents called them both to the city, because previously they were living in the village life, now they were called in the city. Now both of them were separated, both of them were given separate room. Okay, that means the love between them was separated after that when they were called towards city. The English school science music did not appeal to her. When his grandson was studying in English school and he was studying science and music, that means Khushwant Singh's grandmother did not like all that at all. The narrator went abroad after that for 5 years and he was separated from his grandmother for his further studies. Okay, for his higher studies. His arrival after 5 years from abroad was an occasion for celebration. When he came from abroad, from foreign country after studying for 5 years, that means his grandmother, the narrator's grandmother, Khushwant Singh's grandmother, celebrated when he came back from foreign after 5 years. The old lady tired herself and fell ill. That means she continuously beat the drum and she started singing the song. Okay, and she was very tired after that and she felt very ill. Her death was mourned not only by the narrator's family but also by the sparrows. That means her death was not only mourned. Mourned means what? That means सबको दुख हुआ grandmother की death का. It means that. That means it was not only mourned by narrator's family, author's family, but by the sparrows also. Why with the sparrows? Because during the afternoon time, grandmother used to feed the sparrows. And स्पैरोज ऑल्सो लव्ड हर. चिड़ियों ने भी ग्रैंड मदर से बहुत प्यार किया था, इसलिए उन्होंने भी अपना दुख जताया. ओके, दे ऑल्सो मोर्न. शी यूज टू फीड देम रेगुलरली इन द आफ्टरनून, बिकॉज शी यूज टू फीड देम इन द आफ्टरनून टाइम while living in the city. While living in the city, when she was in the village, she used to feed the village dogs. When she came back to city, she used to feed the sparrows. Now I would be explaining you the story in detail. Now see, pen portrait of grandmother. Now we will be talking about the character sketch of Khushwant Singh's grandmother, narrator's grandmother. In the portrait of a lady, Khushwant Singh draws a pen portrait of his grandmother. In this chapter, Khushwant Singh is telling about his grandmother. Story about his grandmother. His grandmother was like everybody's grandmother. His grandmother was like everybody's grandmother. She was quite an old woman. She was very old woman. It was hard to believe that once she had been young and pretty. That means once upon a time she was very young and pretty. The thought itself was revolting. The thought itself was very revolting. That means ये बहुत revolting वाली बात है. ओके, विद्रोह वाली बात है. विद्रोह वाली बात क्यों है? क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, नाउ शी इज़ वेरी ओल्ड. शी डज नॉट लुक so beautiful as she was in her younger days. It means that. Okay, his grandfather picture hung above the mantelpiece. What do you mean by mantelpiece? Just above the shelf. Okay, just above the shelf, his grandfather's picture was hanging over there. Okay, just above the mantelpiece in the drawing room. Okay, he looked at least 100 years old. When you look at the picture of the grandfather,
That means he is having a white mustaches, white beard, white hair and all. That means he is looking 100 years old in the picture. Okay, so this is the first paragraph. Now in the second paragraph, looked terribly old. Now we are talking about the grandmother. Okay, character of the grandmother. Okay, in physical appearance, that means how she looked like. Khushwant Singh's grandmother was a short lady. She was a very short lady. उनकी हाइट बहुत कम थी. She was fat and slightly bent. She was very fat and slightly bent. She had a wrinkled face. She was having a wrinkled face. She looked very old. She looked very old. She had been looking the same for 20 years. That means for 20 years she was looking like that only. Okay, she could not walk straight. She could not walk straight at all. She hobbled about the house. She hobbled about the house. That means वो लंगड़ाते हुए चलती थी. In his spotless white clothes, that means she always used to wear white clothes. Spotless means बिना किसी दाग के. सफ़ेद कपड़े में कोई दाग नहीं होता था. दैट इज़ नोन एज स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स. शी हैड टू कीप हर वन हैंड ऑन अ वेस्ट. दैट मीन्स एक हाथ उनको हमेशा कमर में रख के चलना पड़ता था. टू बैलेंस हर बॉडी, क्योंकि उनकी बॉडी काफ़ी झुकी हुई थी. जब हम ओल्ड हो जाते तो हमारी बॉडी काफ़ी झुक जाती है. ओके, इट वॉज टू बैलेंस हर स्टूप, जिससे कि वो अपने आप को बैलेंस रख सके. शी हेल्ड अ रोजरी. उनके हाथ में रोजरी थी. रोजरी मीन्स जिससे हम प्रेयर करते हैं, जपते हैं ना, जपने वाली माला. जस्ट लाइक वी डू राम 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 राम, जपने वाली माला, जस्ट लाइक दैट. इन द अदर हैंड शी वॉज ऑलवेज टेलिंग द बीड्स. और दूसरे हैंड से बीड्स को घुमाते हुए वो हमेशा प्रेयर करती थी. हर सिल्वर लॉक्स स्कैटर्ड ओवर हर पेल फेस. Now silver locks means what? We are talking about her white hair. Grandmother के सफ़ेद बाल. It is just looking like silver. That means वो चांदी की तरह चमकते थे, क्योंकि वो white थे तो वो चांदी की तरह चमकते थे. white बाल उनके. Her silver locks scattered over her pale face. That means उनके कमज़ोर चेहरे पे उनके बाल जो है सामने आ जाते थे जब वो झुक के चलती थी. Her lips constantly moved. और उनके लिप्स हमेशा चलते थे. वो लिप्स से हमेशा प्रेयर करती थी. शी ऑलवेज प्रेयर टू हर सेल्फ. दैट मीन्स शी ऑलवेज मन में प्रेयर करती थी. शी प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ पीस एंड कंटेंटमेंट. दैट मीन्स उनके वाइट क्लोथ्स को देख के, सफ़ेद बालों को देख के ऐसा लगता था कि वो एक मूरत है, एक शांति की मूरत है. पिक्चर ऑफ पीस, दैट मीन्स शांति की मूरत है. एंड कंटेंटमेंट, दैट मीन्स एक पीस की वो मूरत है. ओके, नाउ सी, नाउ इन द थर्ड पैराग्राफ, एज क्लोज फ्रेंड. दैट मीन्स व्हेन दे वर लिविंग इन द विलेज लाइफ. फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द विलेज लाइफ. ऑथर्स with his grandmother when they were staying in the village together. Okay, they were very close friend. मतलब ऑथर और उनकी ग्रैंडमदर एक दोस्त की तरह रहते थे. The narrator and his grandmother were very good friends. The narrator and his grandmother were very good friends. His parents had left him with her in the village. नरेटर के पेरेंट्स ने जो है उनको छोड़ा था अपनी ग्रैंडमदर के पास विलेज में. दे वर ऑलवेज टुगेदर देयर. विलेज लाइफ में दोनों हमेशा एक साथ होते थे. शी यूज टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग. हमेशा ग्रैंडमदर उनको मॉर्निंग में जगाया करती थी. शी गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल. और वो हमेशा स्कूल जाया करते थे. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स in an unchanging sing song. That means she used to say her morning prayers in monotonous sing song. हमेशा quietly मन में वो हमेशा प्रेयर करती थी. She would wash his wooden slate. उनकी एक लकड़ी की स्लेट होती थी, जिसे हम स्लेट चौक से, पेंसिल से लिखते हैं ना, दैट स्लेट वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके, तो
एक स्लेट होती थी नरेटर के पास, एंड प्लास्टर इट विथ येलो चॉक, और वो येलो चॉक से उनके स्लेट को हमेशा डिज़ाइन करती थी, उनका बॉर्डर बनाती थी। ओके, शी वुड टेक एन अर्थन इंक पॉट एंड रेड पेन, और वो हमेशा एक इंक पॉट और हमेशा रेड पेन साथ में ले जाती थी। शी वुड टाई देम अप इन अ बंडल एंड हैंड इट टू हिम, और वो एक बंडल में टाई करके नरेटर को दे दिया करती थी। शी वुड गिव हिम अ थिक स्टेल चपाती, और वो नरेटर को मोटी रोटी जिसमें बटर लगा होता था, स्टेल चपाती मीन्स बासी रोटी, जो बासी होती है, रात की बासी रोटी गरम करके बटर लगा के नरेटर को देती थी। विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, जिसमें थोड़ा सा बटर होता था और शुगर होता था। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और बहुत सारी बासी रोटियां वो अपने साथ ले जाती थी। किसके लिए ले जाती थी? मतलब गांव में जो है डॉग्स भी होते थे, डॉग्स को वो फीड करती थी, गांव में वो डॉग्स को फीड करती थी। जैसे किसी जानवर को खाना खिलाना जो है बहुत ही शुभ माना जाता है, जैसा लाइक दैट कि ग्रैंड मदर हमेशा डॉग्स को खाना खिलाती थी। वो नरेटर के साथ हमेशा रोज़ स्कूल जाती थी और स्कूल से वापस भी आती थी। ओके, नाउ सी, went to school with the narrator. That means in the fourth paragraph we'll discuss about what? She always went to school with the narrator. The grandmother always went to school with the narrator. That means grandmother हमेशा नरेटर के साथ स्कूल जाती थी। The school was attached to the temple. That means the school was attached to the temple. Temple means what? We are talking about the Gurudwara. That means narrator was a sick person. That means he was a Sardar. He was sick. Okay. Or that school was attached to the Gurudwara. That means we are talking about that. There the priest taught the children the alphabet and morning prayers. वहाँ के जो प्रीस्ट थे, वहाँ के जो पंडित थे, वो क्या सिखाते थे? गुरुद्वारे के जो गुरु थे वो हमेशा नरेटर को अल्फ़ाबेट पढ़ना सिखाते थे और मॉर्निंग में प्रेयर्स करना सिखाते थे। द चिल्ड्रन सैट इन अ रो ऑन ईदर साइड ऑफ द वेरेंडा, और बच्चे जो है एक रो में बैठते थे, एक कतार में बैठते थे, एक लाइन में बैठते थे। ऑन द ईदर साइड ऑफ द वेरेंडा, वेरेंडा मीन्स जो आंगन होता था उसका। ओके, दे सैंग द अल्फ़ाबेट एंड द प्रेयर इन कोरस, वो अल्फ़ाबेट्स और प्रेयर कोरस में बोलते थे। कोरस मीन्स ऑल टुगेदर, दे यूज टू से एंड स्पीक ऑल टुगेदर। द ग्रैंड मदर सैट इनसाइड द टेम्पल, और ग्रैंड मदर कहाँ जाके बैठ जाती थी? गुरुद्वारे के अंदर जाके बैठ जाती थी। शी स्पेंट हर टाइम इन रीडिंग होली बुक्स, वहाँ पे वो होली बुक्स पढ़ती थी। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द गुरु ग्रंथ साहिब। ओके, शी यूज टू रीड द स्क्रिप्चर्स फ्रॉम गुरु ग्रंथ साहिब। शी वुड वॉक बैक होम विथ हिम, जब दोनों की छुट्टी हो जाती थी तो दोनों एक साथ घर वापस आते थे। द विलेज डॉग्स वुड गैदर एट द टेम्पल डोर, और विलेज डॉग्स जो है कहाँ गैदर होते थे? टेम्पल डोर पे, गुरुद्वारे के नज़दीक गैदर हो जाते थे। दे ग्राउल्ड एंड फॉट फॉर द चपातीज थ्रोन टू देम, ग्रैंड मदर जो चपातीज डॉग्स को खिलाती थी वो डॉग्स आपस में लड़ झगड़ के वो रोटियां खाते थे। नाउ सी इन द फिफ्थ पैराग्राफ, अ टर्निंग पॉइंट इन रिलेशनशिप। अब टर्निंग पॉइंट क्या था उनके रिलेशनशिप में? विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। वन डे द नरेटर्स पेरेंट्स सेंट फॉर देम इन द सिटी, एक दिन नरेटर के पेरेंट्स ने ग्रैंड मदर को और उन्होंने अपने सन खुशवंत सिंह को सिटी में बुला लिया। अभी तो हमने विलेज लाइफ की बात की, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सिटी लाइफ। इट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप, इट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। दे शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि दोनों एक ही रूम शेयर करते थे। हिज ग्रैंड मदर नो लॉन्गर वेंट टू स्कूल विथ हिम, अब ग्रैंड मदर शहर में जो है नरेटर के साथ स्कूल नहीं जाती थी। द नरेटर वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस,
नरेटर जो है he used to go to school in a bus now, in a school bus now, in a motor bus now. ओके गांव में तो विलेज में तो अपनी ग्रैंड मदर के साथ वो जाते थे, लेकिन स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगे थे और स्कूल बस में जो है स्कूल जाते थे. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, दैट मीन्स सिटी में जो है डॉग्स नहीं होते थे. द ग्रैंड मदर टुक टू फीडिंग द स्पैरोज. अब ग्रैंड मदर ने सिटी लाइफ में क्या किया? ग्रैंड मदर ने सिटी लाइफ में स्पैरोज को फीड करना शुरू कर दिया. ईयर्स रोल्ड बाय, ऐसे ऐसे समय बीतता गया. द ग्रैंड मदर एंड हर ग्रैंड सन सॉ लेस ऑफ ईच अदर. अब ग्रैंड मदर और नरेटर एक दूसरे से कम मिलने लगे और एक दूसरे को कम देख पाते थे. शी आस्क्ड द नरेटर व्हाट वाज टॉट टू हिम इन द स्कूल. जब कभी भी टाइम होता था बात करने का तो वो नरेटर खुशवंत सिंह से पूछती थी, अपने ग्रैंड मदर जो है खुशवंत सिंह अपने ग्रैंड सन से पूछती थी कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया. तो व्हाट द नरेटर टोल्ड, ही टोल्ड दैट ही वाज टॉट साइंस, म्यूजिक एक्सेट्रा. तो व्हाट द नरेटर टोल्ड दैट ही वाज टॉट साइंस, म्यूजिक एक्सेट्रा. शी हेटेड इंग्लिश, साइंस. उनकी ग्रैंड मदर को साइंस और इंग्लिश पसंद नहीं था. शी फेल्ट सैड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड इन स्क्रिप्चर्स. दैट मीन्स नरेटर की ग्रैंड मदर को काफ़ी दुख हुआ कि वहाँ पे जो है ग्रंथों के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, होली बुक्स के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, वहाँ पे भगवान के बारे में पढ़ाया नहीं जाता. तो शी वॉज वेरी सैड अबाउट दैट. एट द न्यू स्कूल शी डिड नॉट लाइक म्यूज़िक. उनको म्यूज़िक भी पसंद नहीं था. लेसन्स बीइंग गिवन इन द स्कूल, जो म्यूज़िक लेसन्स देते थे स्कूल में ग्रैंड मदर को वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी. टू हर म्यूज़िक हैड अ लोअर वैल्यू. टू हर म्यूज़िक हैड अ वेरी लोअर एसोसिएशन. दैट मीन्स म्यूज़िक को जो है बहुत ही उस ज़माने में बहुत ही कम दर्जे का आंका जाता था. जैसे डांसिंग करना या म्यूज़िक सीखना उस ज़माने में अच्छा नहीं होता था, एक्टिंग करना अच्छा नहीं माना जाता था. फैमिलीज़ में लोग ये मानते थे कि ये नीचे दर्जे का काम है. ओके, इट वॉज ओनली गुड फॉर द बेगर्स. दैट मीन्स ये जो है बेकारियों का काम होता है. ग्रैंड मदर के अकॉर्डिंग आवारा लोगों का काम है, बेकारियों का काम है. इट मीन्स दैट. ओके, नाउ सी, नाउ इन द 6th पैराग्राफ द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन. अब दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप थी अब वो बिल्कुल टूट चुकी थी. द नरेटर वेंट अप टू यूनिवर्सिटी. अब नरेटर बड़े हो गए थे, अब वो कॉलेज में पढ़ाई करते थे, तो ही वेंट टू यूनिवर्सिटी. ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन. जब वो बड़े हो गए तो उनको एक सेपरेट रूम दे दिया गया और ग्रैंड मदर को सेपरेट रूम दे दिया गया. द कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन. जब दोनों को सेपरेट सेपरेट रूम दे दिया गया तो दोनों की फ्रेंडशिप टूट गई. द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली. तो ग्रैंड मदर ने अपना अकेलापन स्वीकार कर लिया. शी बिजीड हर सेल्फ विद द स्पिनिंग व्हील. तो उन्होंने चरखे में अपना काम शुरू कर दिया. जैसे गांधी जी चरखा बुनते थे ना, जस्ट लाइक दैट, तो वो चरखा चलाती थी. शी टॉक्ड रेयरली. अब वो दोनों एक दूसरे से बहुत कम बात करते थे. शी रिलैक्स्ड ओनली इन द आफ्टरनून टाइम. आफ्टरनून टाइम में जब भी उनको समय मिलता था तो कुछ पल के लिए वो रिलैक्स करती थी. शी इन्जॉयड हर सेल्फ वाइल फीडिंग द स्पैरोज. दैट मीन्स उनको किस चीज़ में मज़ा आता था? स्पैरोज़ को दाना देने में उनको काफ़ी मज़ा आता था. वो अक्सर समय निकाल लेती थी स्पैरोज़ को दाना खिलाने में, ब्रेड्स खिलाने में, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े खिलाने में. ओके, ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स एंड थ्रू देम टू द स्पैरोज़. वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके स्पैरोज़ की तरफ फेंकती थी और स्पैरोज़ उनको खाते थे. 100 ऑफ स्पैरोज़ कलेक्टेड अराउंड हर. बहुत सारे स्पैरोज़ जो है उनके नज़दीक बैठ जाया करते थे. दे क्रिएटेड अ हेल ऑफ अ नॉइज़. और वो काफ़ी शोर मचाते थे. सम केम एंड सैट ऑन अ लेग्स. कुछ स्पैरोज़ तो जो है उनके नज़दीक आ जाते थे, उनके पैर पे बैठ जाते थे. द अदर पर्ज्ड ऑन अ
shoulders, और कुछ स्पैरोज उनके शोल्डर पे बैठ जाते थे, कंधे पे बैठ जाते थे. She never drove them away. वो उनको कभी भगाती नहीं थी. It means that feeding the sparrows was the happiest half hour of the day for her. This question always comes in the examination. What is the happiest half hour of the day for the grandmother? That means the happiest half hour of the day of the grandmother was to feed the sparrows. That means you have to explain the answer in detail. Now, in the 7th paragraph, the narrator goes abroad. Now, for 5 years, that means narrator was separated from his grandmother. Now, for his further studies, Khushwant Singh goes to abroad now. The narrator decided to go to abroad for higher studies. That means narrator higher studies के लिए abroad जाते हैं. The grandmother was not upset. The grandmother was not upset at all. She came to drop him at the railway station. वो रेलवे स्टेशन तक नरेटर को छोड़ने आती है. She did not show any emotion. उन्होंने कोई इमोशन अपना नहीं दिखाया. She showed love to her grandson. She kissed her forehead. That means उन्होंने नरेटर के माथे को चूमा. Silently, the narrator thought that it was the last sign of physical contact between them. Narrator को ऐसा लगा कि वो आखिरी बार अपनी ग्रैंडमदर को देख रहा है. हो सकता है 5 साल के बाद जब वो वापस आए तो अपनी ग्रैंडमदर को दोबारा ना देख पाए. ओके, नाउ सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, द होम कमिंग ऑफ अ ग्रैंडसन सेलिब्रेटेड. जब नरेटर जो है 5 साल के बाद एब्रॉड से पढ़ के वापस आए तो उनकी ग्रैंडमदर ने जब वो आए तो उनका वेलकम किया, उनका स्वागत किया और उसको सेलिब्रेट किया ग्रैंडमदर ने. तो विल टॉक अबाउट दैट. द नरेटर रिटर्न्ड होम आफ्टर 5 years. 5 साल के बाद फॉरेन में पढ़ने के बाद नरेटर वापस आए. द ग्रैंडमदर डिड नॉट लुक अ डे ओल्ड. नरेटर को जो है उनकी ग्रैंडमदर एक दिन भी ओल्डर नहीं लगी. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. इवनिंग टाइम में थोड़ा सा चेंज आया उनमें. शी डिड नॉट प्रे. उस दिन उन्होंने प्रार्थना भूल गई, वो प्रार्थना करना भूल गई. शी कलेक्टेड ऑल द वुमन ऑफ द नेबरहुड. पड़ोसी की सारी औरतों को ग्रैंडमदर ने बुलाया. शी टुक एन ओल्ड ड्रम. और पुरानी ढोलक ली. एंड स्टार्टेड सिंगिंग. ढोलक लेके जो है वो गाने लगी. She continued thumping the old drum for several hours. That means कई घंटों तक उन्होंने ढोलक बजाई. She sang for the homecoming of warriors. That means उन्होंने वीरों के गीत गाए. जब नरेटर घर वापस आए तो उन्होंने वीरों के गीत गाए. ग्रैंडमदर ने वीरों के गीत गाए. They had to persuade her to stop. That means ग्रैंडमदर की ओल्ड एज को देखते हुए घर वालों ने उनको रोकने की कोशिश की. सिंगिंग एंड बीटिंग ऑफ द ड्रम कुड मेक हर टायर्ड. क्योंकि अगर लगातार वो गाती रहेंगी, लगातार ढोल पीटती रहेंगी तो उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी हो गई थी. फॉर द फर्स्ट टाइम शी डिड नॉट प्रे. और पहली बार ऐसा हुआ था कि जिस दिन वो प्रार्थना करना भूल गई थी. ये तो हमेशा वो प्रार्थना करती हैं, प्रेयर करती हैं, पूजा करती हैं, लेकिन उस दिन वो प्रार्थना करना, पूजा करना भूल गई थी. Now, the sad part of the story will talk about the emotional part and the touchy part of the story. In the next paragraph, 9th paragraph, the grandmother's death. Now, in the 9th paragraph, we'll be talking about the grandmother's death. The next morning, she fell ill. क्योंकि उन्होंने सारा दिन ढोल बजाया, गाया, तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, अगले मॉर्निंग वो काफ़ी बीमार हो गई. शी डिक्लेयर्ड दैट हर एंड वॉज नियर. और उनको लगने लगा कि उनका एंड जो है नज़दीक है. शी डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू देम. अब जो है वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी. शी ले पीसफुली इन बेड. वो शांति से अपने बेड पे लेट गई. शी कंटिन्यूड प्रेइंग एंड टेलिंग अ बीड्स. जब वो बेड पे लेट गई तो वो लगातार प्रेयर करती रही और अपने बीड्स को घुमाती रही, जपने वाली माला को वो घुमाती रही.
देन हर लिप्स स्टॉप, उसके बाद उनके लिप्स चलना बंद हो गए। द इमोशनल एंड टची पार्ट ऑफ द स्टोरी, द रोजरी फेल डाउन फ्रॉम अ लाइफलेस हैंड, और जो जपने वाली माला थी उनके हाथ से छूट के नीचे गिर गई फर्श में। ओके, शी वॉज डेड, शी वॉज डेड नाउ, शी वॉज लेड ऑन द ग्राउंड, और उनको फिर जब वो उनकी डेथ हो गई तो उनको ग्राउंड में लेटा दिया गया। हर डेड बॉडी वॉज कवर्ड विथ अ रेड श्राउड, और उनके डेड बॉडी को किससे कवर किया गया? लाल कपड़े से, क्योंकि पंजाबी फैमिली में, सिख फैमिली में बॉडी को लाल कपड़े से कवर किया जाता है। हर डेड बॉडी वॉज कवर्ड विथ रेड श्राउड, श्राउड मीन्स जो डेथ का कपड़ा होता है जिससे डेड बॉडी को हम ढकते हैं, दैट इज नोन एज श्राउड। ओके, नाउ इन द लास्ट पैराग्राफ, मोर्निंग बाई स्पैरोज, दैट मीन्स स्पैरोज ने भी अपना दुख जताया। मोर्निंग मीन्स व्हाट? दुख जताना, अपना दुख व्यक्त करना, दैट इज नोन एज मोर्निंग, MOURNING इट इज। ओके, मोर्निंग बाई स्पैरोज, स्पैरोज ने भी अपना दुख जताया। नाउ इट वॉज इवनिंग, इट वॉज इवनिंग टाइम, द सन वॉज सेटिंग, द सन वॉज सिटिंग डाउन, दे ब्रॉट अ वुडन स्ट्रेचर, एक वुडन स्ट्रेचर होता है जिसमें हम डेड बॉडी को रखते हैं। ओके, दे स्टॉप्ड हाफ अवे इन द कोर्टयार्ड, घर के आंगन में वो थोड़ी देर रुक गए। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सैट नियर हर डेड बॉडी, बहुत सारे स्पैरोज उनके डेड बॉडी के नज़दीक बैठ गए, क्योंकि अक्सर ग्रैंड मदर स्पैरोज को जो है खाना खिलाती थी, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके खिलाती थी, और वही स्पैरोज आए और बहुत सारे स्पैरोज उनके डेड बॉडी के पास आके बैठ गए। लेकिन एक बात थी, उस दिन स्पैरोज ने एक भी आवाज़ नहीं की थी, उन्होंने आवाज़ नहीं निकाली थी, क्योंकि पक्षियों को भी आभास हो जाता है, दे ऑल्सो फेल्ट। ओके, थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सैट नियर हर डेड बॉडी, दे डिड नॉट चिरअप, दैट मीन्स उन्होंने कोई आवाज़ नहीं की, दे डिड नॉट चिरअप। Everyone felt sorry for the birds. Everybody was feeling really very sorry for the birds. That means सबको दुख हो रहा था बर्ड्स के लिए भी, और बर्ड्स ने भी अपना दुख जताया ग्रैंड मदर के प्रति। इट वॉज लाइक दैट द नरेटर्स मदर ब्रॉट ब्रेड एंड ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स। फिर बाद में जो नरेटर की मदर थी, उन्होंने स्पैरोज़ के लिए रोटी के छोटे छोटे टुकड़े फेंके स्पैरोज़ की तरफ, लेकिन स्पैरोज़ ने उसको नहीं खाए और चुपचाप वहाँ से उड़ गए। इट वॉज लाइक दैट शी थ्रू दोज क्रम्स, उन्होंने रोटी के छोटे छोटे